ordering 3 ordinances and proposed electricity amendment bill 220 forthwith. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance of 220. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance Farmers Services Ordinance 220 and the Essential Commodities Amendment Ordinance of 20. Even though the concerns and sentiments of the House were conveyed to the Prime Minister through 3 letters which I addressed to the Prime Minister, पहला मैं चिट्ठी लिखी जुलाई जून कि साढ़े व्यूज ने ये नहीं होना चाहिए ऑर्डिनेंस विड्रॉ करो। जुलाई हाउस की सिटिंग तो बाद मैं हाउस के व्यूज उन्होंने दसे और तीसरी और जुलाई जो सितंबर में मैं एक और चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आज तुम नहीं कर रहे कि नाल बड़ा हालात अच्छे नहीं और देश के through letter number so and so, Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Punjab, I wrote to him. The Government of India converted these ordinances to acts and notified the same as follows. फिर उन्होंने अपने 10 बिल बनाया. These 3 legislations, along with proposed electricity amendment bill 220, are clearly against the interests of the farmers and landless workers. And time-tested agricultural market system established not only in Punjab but also in the original individual green revolution areas of Punjab, Haryana, and Western UP. Clearly, the Government of India has enacted legislations and not farm legislation, as the Constitution will show when I will speak mention them. These are also against the Constitution of India in 14:2, which comprises agriculture as a subject of the state. These legislations are direct attack and act of subterfuge to encroach upon the function and the power of the state inside the country's constitution. In the associate background, the Assembly sustained to unanimously reject these 3 legislations and the proposed electricity amendment to 220. It once again urges upon the Government of India to not only to annul these legislations, but also promulgate a fresh ordinance making the procurement of food grains on the minimum support price a statutory right of the farmers and continue with the procurement by Government of India through the FCI and other such agencies. A massive resolution of the for discussion at any time. आपने हम क्या कि मैं बिल पेश करा मैं इन्हों पेश कराता मैं ओके सरकारी मता प्रस्ताव पेश किया गया कि राज की विधान सभा भारत सरकार को हुणे जहे घड़े कथित खेती कानून बारे किसानां दीयां चिंतावां दे हल नूं लै के अपनाए कठोर ते बेतरक वतीरे प्रति डूंगा खेद प्रगट करती है। विधान सभा ने मिति 28 अगस्त 2020 नूं एक मते राही भारत सरकार नूं जोर दे के कहा सी कि वो निम्नलिखित आर्डीनेंसां ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਐਂਡ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਭਾਵੇਂ ਕਿ पंजाब विधान सभा के सदन दीयां चिंतावां अते जज्बातां तो भारत के प्रधानमंत्री जी नूं मुख्यमंत्री पंजाब वालों उन्हां दे पत्र नंबर CMO कांफी 2020/635 मिति 14 सितंबर 2020 राही जाणू कराया गया सी। फिर भी भारत सरकार ने उपरोक्त आर्डीनेंसां नूं कानूनां विच तब्दील करके हेठ अनुसार अधिसूचित कर दिता। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 24 सितंबर 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 24 सितंबर 2020 एंड The Essential Commodities Amendment Act 2020 26 सितंबर 2020 प्रस्तावित बिजली शोध बिल 2020 समेत ये 3 कानून साफ तौर पर
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ 2 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, मैं आपको मेरी करता है कि पहला था फॉर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। दूजा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस पॉलिसीज स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। कि मैं आपको ये बेनती करना है कि ये बिल तुरंत ये पास किए जाए। प्रस्ताव पेश किया गया। एक जी माफी चाहते जी वो एजेंडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ related ਹੈ। CRPC ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ just एक मिनट पर the farmer produce trade and commerce promotion and facilitation special provision and Punjab amendment bill 2020, the farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services special provisions and Punjab amendment bill 2020 and the essential commodities special provisions and Punjab amendment bill 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਭੀ ਸੇ। Speaker Sir, I present the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020. Sir, I propose that the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020 should be considered immediately. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ 4 ਐਕਟ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਸੇਮ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। सीएम साहब। है जी बिल्कुल 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 तुम अपनी लिस्ट भेजो जी थोड़ी लिस्ट आई है वैसे ही हो जाना बोलते बता दें मैं हो ज्यादा कर अद्धे तो ज्यादा कर दें अद्धे तो ज्यादा कर दें तो बारे ज्यादा बना दें पहला कोई गल
कोई तौहीन नहीं है। हाँ जी स्पीकर साहब इस तरह करो, ट्रेजरी बेंचेस को ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ, ਹਾਊਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। सीएम साहब बैठो बैठो बैठो, सीएम साहब बोल रहे हैं, सुनो, बैठो प्लीज बैठो। चीमा साहब प्लीज बैठो, चीमा साहब बड़ा सेंसिटिव इशू है, प्लीज बैठो। हाँ सीएम साहब। स्पीकर साहब कदम तो ये गल चल रही है, मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिस तरीके ये डिस्कशन चल रही है। बिल बने स्टार्ट विद शांता पहला था साडी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया इट इज हियर, और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे, फिर जब आ गए फिर इन्होंने नहीं की, और फिर उन्होंने अपना शांता कमीशन की रिपोर्ट भी बना रिपोर्ट बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा ना शांता कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट इन्होंने आई थी, एंड समिंग अप इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइस होएगा, पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं, और ये 2006 की गल है। While output prices are not keeping up with the rise of cost of production. Cost of production आगे निकली के नाल होनी चाहिए। The minimum support price should not only continue but should be listed with the wholesale price index. और उन्होंने फिर किया मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया। नवी 2006 की गल, फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे, जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते, लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अधीन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी। इन्होंने आ रिपोर्ट है शांता कुमार की, एंड ही हैज सेड क्लीयरली ये कि MSP हटा दो, इसका बड़ा नुकसान है। FCI शुड नॉट बी देयर, जेड़ा देश को बड़ा नुकसान है। फ्री ट्रेड कर दो वगैरह जेरे सब कुछ लेके आए। नाउ आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया, संविधान बनया साडे हिंदुस्तान में, उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स, सम आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स, और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को, जेडे साडे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और ये सारे जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई साडे स्टेटां नूं कई अधिकार से कि तुसीं अपने आप कानून बेस पे बनाओ, एक करके दूसरा तीसरा करके खत्म कर दे। GST की गल देखो, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन ऑन विल बी डन बाय थ्रू द GST प्रोसेस, एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हो गए महीने? 7 महीने और कितना पैसा पंजाब को ड्यू है? 9,000 करोड़ सानू ड्यू है। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? पावर साथ तो लेना, फिर इंप्लीमेंट भी कर सकते। दिस इज वन, ये एक चीज है। लेकिन दूजा खेती बाड़ी इज स्टेट सब्जेक्ट, इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री 14 ਦੇ ਵਿੱਚ इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो एंट्री 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इग्नोर करता, which says clearly agriculture including
एग्रीकल्चर, एजुकेशन एक्सेट्रा ਇਹ ਨਾਲ ਔਰ 28 ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 ਮੀਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਡ। ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਔਰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਵਿਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਢੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਮੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੰਡ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਟਰ ਬੀਜਦਾ ਔਰ ਮਟਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬੀਜਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਸਾਨ और मैं मटर फिर खरीदा अपने बाग को मैं तोड़ना एंड आई यूज इट, कुछ मैं शेयर ज्यादा मटर हो मैं शेयर डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना। दैट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच आई एम सेलिंग, नॉट ट्रेड। तो एक ट्रेड नु अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव ब्रॉट इट, मैं नहीं समझाऊंगी, पहले एक्सप्लेन करें। जब लोड सी कि बहस करो पार्लियामेंट से बहस कराई, Why didn't you बहस क्यों नहीं कर? बहस कराओ दे और 10 दे कि एक 33 दे अंदर आया, बट वो बहस अगर पता सी कि बहस वास्ते दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन एंड प्रपोज इट। ही कैन गिव थ्री लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਦਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है और बीजेपी पार्टी की सोच है। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई ब्लेम बीजेपी। लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी, दीज आर माइनर थिंग्स आई वांट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया। नंबर 1 सैकेंडली तुसी ये भी सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने ਜਦੋਂ PM 480 ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਰੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ 50 ਸਮ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗੀ ਬੋਲ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ PM 480 ਕੀਤੀ ਔਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਫੀਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 1.17% ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਾਰ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਦੇ लोग भुखे मरन तो ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, ਮਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ इस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की कि जो मेहनत होती थी सारे पंजाबियों ने 70 साल तुम भुल गए। मैं अपने पंजाबियों ने हरियाणे वाले, यूपी वेस्ट वाले हुक्का क्यों करती है ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ आप गंगा जमुना बेसन डेवलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लगी, कांगड़ी बेसन नर्मदा बेसन सारे डेवलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई। पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो, पंजाब ये इंसाफ है? आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है? ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसीं लोगों को वरते हो इत्थे पंजाब की तपी है जिहड़ी अज बॉर्डर ते बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है। कदे कोई गया उत्थे सियाचिन दे विच 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे, सारी हिंदुस्तान की फौज
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਸੇ कैसे जीएंगे, साढ़े मापे बैठे ने, साढ़े बच्चे बैठे ने, कैसे जीएंगे, ये की कर रही है गवर्नमेंट के विच। मैं रहा 16,000 फुट पे, पर वो तो भी मैंने पता सी मुश्किल नाल साह होता सी। 22,000 फुट पे लोग बैठे ने, चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर, सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है, सियाचिन ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਇਹ 1.5% 57% ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਅਨਈਜ਼ੀ, ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। मैं ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-10 ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, GVK ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਲਹਿਰਾ ਰੋਪੜ ਖਾਰੇ ਕੁਝ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਇਹਦੇ ਸਮੂਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮਨੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। If you have to buy, you can't buy. आज कोड़ा खरीद के रख ले, क्यों नहीं रखा, क्योंकि they don't get जरा जिन्ना कोड़ा सी कितने दिन तो चल रही है, बड़ा खत्म हो गया। आज 10-15 दिन का स्टॉक होता है, ज्यादा नहीं होता। प्लीज मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਪੂਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। तो ये सारिया चीज़ा हम देखते हैं पंजाब की इकॉनमी का, पता 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री।
वी कैनॉट अफोर्ड दिस। एक पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहना, मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कहते हैं कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने, पर मैं औखी घड़ी दे विच पंजाब देखिया। मैं देखिया जो 35,000 पंजाबी इत्थे घूम डुलिया सी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि ये काम फेल हो गए। और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानना आई एम होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ। मैनूं पता है कि कुछ हो हथियार आते हैं, कैसे आते हैं, किन्ने ड्रोन आते हैं, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने, किन्ने असीं गैंगस्टर नूं जिहड़े टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व सी उन्हां नूं असीं किन्ना फड़िया, सब कुछ देखिया। और ये जिहड़ा अगर इहदा हल नहीं निकलदा, ये मूवमेंट बढ़ेगी कदेगी नहीं। यही होया सी 1984, नहीं होया सी 90 दे विच। किन्ने बंदे शहीद कीते ने। आपां चाहुंदे कि इत्थे आबहवा खराब हो सकदा है। कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज ये 3 सालों के 60,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट के विच आया है, जो लोग लेके आए हैं। उन्हें कहते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए वो धरती के उपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने ऐसे साड़ी इकोनॉमी की तरफ किस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ी देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे। उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके। पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुमने और दस दिन कर चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों कालापुर हाईवे आ रही है, एक टनल सोल बढ़ाए और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। डू वी वांट दैट? डू वी वांट ऐसी बॉर्डर स्टेट है कितना आप आते हैं सकामेंगे अपना वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ हो सकता है अगर ये जी मूवमेंट जी आप कणक की गल कर रहे हैं, अपनी बिजाई की गल कर रहे हैं, बाकी मंडियों की गल कर रहे हैं, अगर लोगों को ये नहीं पता कि असी ये कितना नुकसान होगा और फिर उस नौजवान उठ जा और इस मूवमेंट के हिस्सा बन जाए, फिर दसो पंजाब का कहना कि देश का कहना तो ये जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को मेरे रोल है, एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल को नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए बहुत मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स, इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है। अगर एक ही प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्टा ने बड़ी फुर्ती नाल अपना अपने आंकड़े कटे ने, हाल तक टाइम लगूगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,00,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान हो है साडे पंजाब के किसानी वास्ते। और साड़ी मंडी बोर्ड है वह 4 को लेकर 5 लाख रुपये नुकसान है और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बनने ना पिंडा की डिवेलपमेंट होगी, फिर कैसे चलेगा सारा पंजाब। तो इन्होंने कहता कि कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देगा। तीसरी गल फर्टिलाइजर, उन कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने क्या है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान को हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे, 2,500 रुपये पूरी फसल की खल जितना फर्टिलाइजर सन चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंटली पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के विच बिकदा और वो सब्सिडी 5,000 करोड़ है
आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी को 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी और विचों 50,000 करोड़ पंजाब की इंटाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है विच इज 4,000 crore loss to the Punjab farm. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन च आइया नहीं गल्लां कभी आउणियां पर ये साडा काम इस कदर है ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਿਨੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ समय आ गया पंजाब में इकट्ठा होना पो और अपनी किसानी नाल करना पाओ खड़े पता है ये हौसली खड़ा है आपा कानून किया वी हैव टू फेस इट सेंटर ने बंद करिए ना करे तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे फिर लेके जाना पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे ये नहीं कर सकते लेकिन असी वी विल फाइट दिस इस बैटल को लड़ जावांगे हर अदालत के सामने एक गल आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साउथ में मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए कैसे 52 साल हो गए नहीं जदों ब्लू स्टार होया उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट मैं लोकसभा मैं समझा दो चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारा किसी देश की बिगड़ सकती है किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है एक धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम लत मारो अज पेट से पाई जा रही है मैं उदों इस्तीफा दिता फिर बरनाला सरकार मैं सी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैंक खंडन किया मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी कर मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते नहीं मैं कट मैनू बदवा मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम अभी लोगों की कचहरी जावांगे अगर सरकार जाने लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सभी किसानों का जिस तरीके मिलते इन्होंने किए ने जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम लत मारे हो अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू मानयोग स्पीकर साहब मैं सिंह साहब को बधाई देना चाहना रात दिन स्पीकर साहब 17 उन्ना ही करता अज के विधान सभा का सैशन बुलाने का सीएम साहब का निर्णय इस काले कानूनों की काली रात के सितारे वांग चमक रहा है और सचमुच सचमुच हो अज संविधान सभा जो सीएम साहब का निर्णय है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के मुंह के उत्ते चपेट बन के और इस चपेट की गूंज पूरे हिंदुस्तान के गई है पूरे हिंदुस्तान के गई है तो तुम मेहनत कर बस के सत्या एहसान फरामोश